banking services. We have come across this word banking in tertiary sector and auxiliaries to trade, right children? Yes. We are going to start directly with business services. In this we are going to cover banking services, insurance services, transportation, communication and warehousing. So we are very familiar with the word bank. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई पर्शियन शब्द है जो पहली बार सुन रहे हैं, नहीं, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लोगों ने सुना है and we have also been a part of it. It is a very very common word banking, but now we are going to understand how banking helps in facilitating business, how it acts as a aid to business. किस तरह से अगर आपकी कंट्री का बैंकिंग स्ट्रॉन्ग होगा, बैंकिंग सर्विसेज अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो किस तरह से बिजनेसेस बढ़ सकते हैं, तो पर्सपेक्टिव अलग देखने का। समझ में आया? सो बेसिकली अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग इज a service provider which caters right to the individuals also and to the businessmen also, right? We are going to study the services that the banks provide to the businesses, not to the individuals. समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है हम क्या करने वाले हैं बैंकिंग में? तो बैंकिंग बेसिकली जो है उसका एक एक्ट है, बैंकिंग का एक्ट है। Today, if any bank has to start, आज अगर आपको कोई भी बैंक सेटअप करनी है तो you cannot set up a bank under Companies Act. There is a separate banking regulation act. There is a separate banking regulation act. When we talk about banking, if anybody wants to start a bank, see, before 1991 the scenario of banking was different. It was nationalized sector. What was it? समझ में आ रहा है ना, nationalized और privatized. So before 1991 the scene was different. The scene was different. Bank was nationalized. What was bank? Nationalized. Bank was nationalized का मतलब क्या होता है? It was completely run by the government. आज अगर किसी को भी बैंक स्टार्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट मतलब कौन? आरबीआई। गवर्नमेंट मतलब कौन? आरबीआई। गवर्नमेंट मतलब कौन? आरबीआई। समझ में आया? पर अभी 1991 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, बैंक्स प्राइवेटाइज हो गए। बैंक्स क्या हो गए? प्राइवेटाइज। मतलब आज अगर किसी को भी बैंक स्टार्ट करनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू वो बैंक स्टार्ट कर सकता है। समझ में आया? पर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? तो आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकर्स बैंक। क्या कहा जाता है? छोटे छोटे वर्ड्स ध्यान में रखने पड़ेंगे बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आएंगे। विच इज अ बैंकर्स बैंक? नॉट इन द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाएगी। पता चला? विच इज बैंकर्स बैंक? विच इज बैंकर्स बैंक? आरबीआई की परमिशन से आप बैंक स्टार्ट कर सकते हो। बैंक एक ऐसी सर्विस है जो बिजनेसेस को बूस्ट करती है, बिजनेसेस को बूस्ट करती है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करो बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करती। फर्स्ट करो द बैंक इज, लेट्स imagine an economy without bank to understand the importance of bank. There is somebody sitting in Bangalore. There is somebody sitting in Bangalore and he wants to buy wheat from Punjab. He wants to buy wheat from Punjab. Punjab is a wheat greenery of India, right? So you buy wheat from Punjab. So Bangalore buys wheat from Punjab, right? And Punjab buys rice from Kerala. Everybody knows this trade, right? So now we want to do this. How is it possible if there is no bank? Imagine there is no bank. So the entire financial transaction should happen through cash. The entire financial transaction will happen through cash. What is the risk, Nihar? पैसे की हेराफेरी हो सकती है, नंबर 1। फ्रॉड हो सकता है, नंबर 2। थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकती है। एक हो सकता है फ्रॉड, दूसरा हो सकता है चोरी। और क्या क्या हो सकता है? एक मिनट क्रिश, पैसे यहाँ से वहाँ ले जाकर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं वो हो गया एक्सीडेंट। चोरी हो सकती है या फ्रॉड हो सकता है, ठीक है? और क्या हो सकता है? हाँ, it is very time consuming process, very time consuming, very cumbersome. Secondly, ऐसा भी हो सकता है either of the parties might be a defaulter. माल आ गया, वो पैसा ही नहीं देगा तो समझ में आया? सोचो अगर बैंक्स नहीं होते, अब इमेजिन क्या, अब तो है ही बैंकिंग वाली इकोनॉमी है हमारी, ठीक है? तो आज माल आए, एक तरफ माल आए, दूसरी तरफ आरटीजीएस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। पर पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से पहले आज ई बैंकिंग आ गया है। आप सब लोग ई बैंकिंग के एरा में हो, यू ऑल बिलोंग टू ई बैंकिंग एरा, ठीक है? तो आपको तो ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या है वो पता ही नहीं होगा।
आपके टेक्स्ट बुक में है ट्रेडिशनल बैंकिंग, ठीक है। आपको तो पता ही नहीं होगा ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या था, जब आपको कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक जाना पड़ता है, जैसे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, चेक उठाने के लिए, कैश उठाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, अगर आपको आपके बैलेंस के बारे में जानना है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो जानने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। When you have to go to the bank physically for any kind of banking transaction, that kind of banking is called traditional banking. What is that kind of banking called? Traditional. When all these transactions are done through electronics, that is with the help of internet and computers. It is done through internet and computers. तो इस तरह के बैंकिंग को कहा जाएगा ई बैंकिंग। समझ में? Now this is exactly what you're going to study in banking. What are the different services provided by the banks? What are the different services provided by the banks? We are going to study all this thing in banking, right? But before we go further, let us try to understand different types of banks. Different types of banks. Different types of banks. Banks आप किसके परमिशन से शुरू कर सकते हो? बैंकिंग रेगुलेशन RBI is your bankers. समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? Let us try to understand different types of bank. First is commercial bank. क्या बोलते हैं इसको? Commercial bank. Commercial bank के अंदर दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करते हैं, ठीक है? जब मैं बात कमर्शियल बैंक की करती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी? PNB, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी मेरी कौन सी बैंक्स है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मतलब these banks are run by the government, funded by the government, everything managed by the government. Whereas private sector bank is HDFC, ICICI, Yes Bank, Kotak। पता चला? ये सारी बैंक्स क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसके अंदर ग्लोबल बैंक्स भी आती है। कौन सी बैंक्स आती है? ग्लोबल बैंक्स। ग्लोबल बैंक्स में क्या आएगा? HSBC, सिटी बैंक, बार्कलेज, etc. समझ में आया? Now when you talk about these banks, when you talk about these brands, ICICI, HDFC, Yes Bank, Kotak, they are not only into banking, they are into insurances as well, they are into financial institutions also. Children, banks and financial institutions are different. When we do chapter number 8, sources of finance, तब हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफरेंस करेंगे। समझ में आया? अभी के लिए आपको वो जानने की जरूरत नहीं। समझ में आया? पर दोनों चीजें अलग होती है। समझ में आया? पक्का? मैं आगे बढ़ूं? यहाँ तक सबको समझ में आया है? You all are with me? Yes. Barclays. समझ में आया? पक्का समझ में आया? When I talk about commercial banks, children, when I talk about commercial banks operate. Commercial banks operate for fast business transaction. In fact, children, it facilitates the business transaction. It facilitates the business transaction. It facilitates the business transaction. समझ में आया? पक्का समझ में आया? Any doubt? Should I proceed further? Okay, so these are my commercial banks. उसके बाद में आता है cooperative bank. क्या आता है? Cooperative bank. Number 2, cooperative bank.
क्या आता है? कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक्स आर रन बाय क्रेडिट cooperative society. It is run by credit cooperative society. Banks like Kalupura Bank, Pragati Sahkari Bank, these all are very fine examples of cooperative bank. समझ में आया? These banks are generally run for their members and for fulfilling the credit facilities of their members. समझ में आया? पक्का समझ में आया? Children, third banks are called specialized banks. Specialized banks. Specialized banks किसको बोलते हैं? Specialized banks are those banks which are established for some special purpose. They are not accessed by individuals. They are established for some special purpose. They are established for some special purpose. ये बैंक का जो निर्माण किया जाता है, ये बैंक को जो एस्टैब्लिश किया जाता है वो स्पेशल पर्पस के लिए होता है. जैसे SIDBI सुना है ना इसके बारे में? SIDBI, नाबार्ड सुना है नाबार्ड के बारे में? नाबार्ड जो बैंक है, सिर्फ नाबार्ड जो बैंक है, इट इज स्पेशली सेटअप फॉर रूरल डेवलपमेंट. तो रूरल एरियाज को आपको डेवलप करने के लिए वहां पे बैंक्स को सेटअप करना पड़ेगा so that people living in villages can also get a credit facility. So who will basically take care of regulating these banks? NABARD. So NABARD is specially set up for rural development. NABARD is specially set up. Okay children? NABARD is specially set up for rural development. So what is the special purpose of NABARD? इसका और कोई काम नहीं है. Exim Bank. Exim Bank का सेटअप क्यों हुआ था? For facilitating foreign exchange. मतलब आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो what you need? You need foreign exchange for the payment, right? आज अगर आपने दुबई से माल खरीदा है तो आपको उसको किस में देना पड़ेगा पैसा? दिराम में देना. आपने यूएस से माल खरीदा है तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा. तो you have to convert your currency into the dollar. Who will help you to convert the currency? Exim Bank. Got it? Khushi? Yes, ma'am. Got it? Pay attention. Then comes children. Apex Bank. हर एक कंट्री की, every country has just one Apex Bank. Every country has one Apex Bank. One Apex Bank. Which is that bank? RBI. इंडिया की RBI. इंडिया की RBI. यूएस की फेडरल. यूएस की कौन सी? फेडरल बैंक. ये किसकी है? इंडिया. यूएस की फेडरल बैंक ऑफ यूएस. समझ में आया? हर एक कंट्री की सिर्फ एक ही एपेक्स बैंक होती है जिसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक. क्या कहा जाता है उसको? बैंकर्स बैंक. समझ में आया? उस बैंक को क्या कहा जाता है? बैंकर्स बैंक. क्या कहा जाता है? बैंकर्स बैंक. समझ में आया? डाउट है किसी को? श्योर चिल्ड्रन? यस या नॉट प्रॉब्लम. We specialize now. Just take this example: Bank of Baroda, SBI, EOB. We have our accounts in these banks, right? We have our accounts in these banks. ICICI, you can have your account. Yes Bank, you can have your account. These are the banks where, in spite of their facilitating business, we as individuals also have access to these banks. Whereas when you talk about these specialized banks, individuals do not have access to these banks. You cannot have your account in this bank. Not A double C.
ए ओके, समझ में आया? पक्का समझ में आया? डाउट है? पक्का नहीं है? आगे बढ़ो। सो चिल्ड्रंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम? आपने अभी ये जो पढ़ा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? You might have questions like give examples. मैंने ये जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ दें। दूसरा डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कमर्शियल बैंक एंड अ स्पेशलाइज्ड बैंक? समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोऑपरेटिव बैंक एंड अ स्पेशलाइज्ड बैंक? 1 मार्क से लेके 3 मार्क तक के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये टाइप्स ऑफ बैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स किस पे? ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? पक्का? ओके। सो नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ बैंक। ये जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं ना, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। क्या आएगा? आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का या 4 मार्क का। छोटे क्वेश्चन आने की गुंजाइश है, छोटे क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। पर इसमें आपको क्या समझना है? अभी जो मैं आपको फंक्शंस करवाने वाली हूँ, फंक्शंस में तुम्हें क्या समझना है? फंक्शंस में ना कॉन्सेप्ट समझने हैं। नए नए कॉन्सेप्ट करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फिर और ई बैंकिंग फैसिलिटी आती है जैसे आरटीजीएस एंड एनईएफटी। हम ये सारी चीजें करेंगे, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स ऑल्सो अबाउट इट। मतलब आप काफी करंट बातें सीखोगे, आप लोग काफी करंट बातें सीखोगे। करंट मतलब आजकल के टाइम पे जिस तरह का बैंकिंग होता है आप वो सीखोगे। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, फंक्शंस ऑफ द बैंक। फर्स्ट फंक्शन दैट द बैंक ऑफर्स इज banks offer you to open the account. And what do you do in this account? आप ये अकाउंट जो आपको ओपन करवाती है बैंक, आप बैंक में कुछ भी करोगे तो अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हो, बिना अकाउंट के नहीं कर सकते। बिना अकाउंट के नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। सबसे पहले बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। आपका जैसे ही बैंक में अकाउंट खुल जाता है, आपका जैसे ही बैंक में अकाउंट खुल जाता है, आप अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बेसिक ट्रांजैक्शन लाइक एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड टेकिंग द विड्रॉल। बेसिक ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, बैंक आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और आपको विड्रॉल देता है ऑन डिमांड। विड्रॉल देता है ऑन डिमांड, ठीक है? Why did anybody open an account in the bank? Account. अगर एक इंडिविजुअल है, बहुत ध्यान से सुनिए, if you are an individual, why did you open the account? It will help you to deposit your surplus. बराबर है? आज मेरी इनकम 10,000 रुपए और मेरा खर्चा सिर्फ 8,000 का है, तो मैं 2,000 रुपए बैंक में रख सकती हूँ। अगर मैंने बैंक में रेगुलरली पैसे रखे तो मेरे पैसे जमा होते रहेंगे। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इनकल्केटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग, हेल्प्स इन इनकल्केटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग amongst the individuals. But let's talk about the business. Why would a businessman open an account in a bank? For saving? No, for business transactions. For business transactions. आज क्यों कोई भी बैंक में, ताकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सके, पेमेंट्स कर सके, अपने पेमेंट्स रिसीव कर सके, क्रेडिट पीरियड दे सके किसी को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, राइट, फॉर मेकिंग समझ में आया? पक्का समझ में आया? Okay. So before we go further, Shruti, let us try to understand what are the different types of accounts. We have current account, saving account, and recurring account. And recurring account. Current account कौन start करता है? Businessman ही, only businessman. Only businessman. Individual will always start
सेविंग अकाउंट। समझ में आया? तो फिर मैडम रिकरिंग अकाउंट क्या है? रिकरिंग अकाउंट विल हेल्प यू इन इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग। रिकरिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है which will help you in inculcating the habit of saving. Recurring account can be started by an individual also. In fact, it is started by an individual only. Say for example, every month I know that my 1000 rupees is saved. Every month I know मेरा इतना पैसा सेव होता ही है। कितना? 1000 रुपया सेव होता है। Now rather than putting it in a saving account, I can start a recurring account in the bank of 1000 rupees, which makes sure that I am putting every month 1000 rupees in the bank. Difference between the recurring account and saving account is recurring account will have more rate of interest, more rate of interest, and minimum amount to be deposited is fixed, whereas in saving account no fixed amount that is to be deposited. Okay? It's like a piggy bank. Saving account कैसा होता है? It is like a piggy bank. How is your saving account? It is like a piggy bank. But in saving account also, when you are putting your deposits, you get very small amount of interest. जैसे 4% of interest you get annually. Probably if you have a recurring account, then your rate of interest will be 6% or 7%. So if I know that this is the amount which I am regularly saving, then I might as well put it in which account? Which account? Savings. If I am saving this minimum amount every month, minimum amount इतना मेरा सेव हो रहा ही है, तो मैं उसको कहाँ डिपॉजिट करूँगी? रिकरिंग में. You can have such kind of questions. Suggest which account should this man open? Should he open a recurring account, saving account, or recurring account, saving account, or current account? Understood? Current account is only no rate of interest. समझ में आया? करंट अकाउंट के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. करंट अकाउंट के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. समझ में आया? पक्का समझ में आया? यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट. यू विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट. आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. समझ में आया? और करंट अकाउंट कौन स्टार्ट करता है? बिजनेसमैन ही स्टार्ट कर सकते हैं. यू एंड मी कैन बी हैव ए करंट अकाउंट? नो. समझ में आया? यू एंड मी कैन हैव ऑप्शन बिटवीन saving and recurring. Who will opt for recurring? Every month certain amount. Every month who can save a fixed amount, they will only opt for recurring. But remember one thing, recurring account does not have withdrawal at demand. Does not have withdrawal at demand. Does not have withdrawal at demand. समझ में आया? डाउट है? श्योर? सेविंग अकाउंट में कैसा होता है? यू कैन हैव विड्रॉल एट डिमांड. वन कैन हैव विड्रॉल एट डिमांड. समझ में? पक्का? तो ये है मेरे 3 टाइप के अकाउंट. ये 3 टाइप के अकाउंट मुझे कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऑफर, विड्रॉल एट डिमांड. नाउ हाउ कैन यू विड्रॉ? ये एक अकाउंट है मेरा, and I can open an account with the help of following details. मुझे बैंक को अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? अकाउंट खोलने के लिए एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और फोटो आईडी देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? फोटो आईडी. क्या देना पड़ेगा? एड्रेस प्रूफ एंड फोटो आईडी. मतलब लाइट बिल देना पड़ता है, पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ती है, या फिर कोई भी चीज जो आपका फोटो आईडी प्रूफ करे
या फिर जो आपका एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? अपना फोटो आईडी लेके जाना पड़ेगा और रेसिडेंशियल प्रूफ। फोटो आईडी, रेसिडेंशियल प्रूफ, ये दो चीजें अगर आप लेके जाओगे तो आपका अकाउंट खुल गया। विद इन 1 वीक आपका अकाउंट खुल जाएगा और जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है आपको एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है। दिस अकाउंट नंबर इज योर आइडेंटिटी। दिस अकाउंट नंबर इज योर आइडेंटिटी, नॉट योर नेम। यू गेट द अकाउंट, you get the account through this number. This number is your identity. आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो इस 10 डिजिट नंबर के थ्रू करोगे। ये 10 डिजिट नंबर के थ्रू करोगे। समझ में आया? पक्का समझ में? काफी सारी चीजें तो आपके टेक्स्ट बुक में, किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं दी है, पर आप जब आज बैंक के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। Children, you will get 2 types of account numbers. One is your regular account number and another is called IFSC code. Sorry, IFSC code. IFSC. Through this code, you can do e-banking. अगर आपके पास ये कोड नहीं है तो आप सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग कर पाओगे। अगर आपके पास ये कोड है, ये कोड कहाँ पे लिखा होता है पता है? आपके चेकबुक, आपकी जो चेक होती है ना वहां पे IFSC कोड लिखा होता है। पासबुक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो भी बैंक्स हैं उनके कस्टमर्स को पासबुक नहीं मिलती है। उनके कस्टमर्स को क्वार्टरली स्टेटमेंट इशू होता है उनके ईमेल आईडी पे। समझ में आया? काफी सारी चीजें, टेलिंग यू दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको काफी चीजें पता चलेगी। अगर आपका बीओबी में अकाउंट है या अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो आपको पासबुक दी जाती है। आप रेगुलरली जाके वो पासबुक अपडेट कराओगे तो आपको पता चलेगा आपकी क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रहे हैं और आपका अवेलेबल बैलेंस क्या है। पर अगर आपका HDFC में अकाउंट है या कोटक में है या येस बैंक में है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, ग्लोबल सेक्टर बैंक्स में अगर आपके अकाउंट्स हैं तो आपको पासबुक फैसिलिटी नहीं मिलती है। समझ में? आपको स्टेटमेंट इशू करवाना पड़ता है ऑन डिमांड। आपको स्टेटमेंट इशू करवाना पड़ता है ऑन डिमांड, which will again tell you about your banking transactions and about your balance. समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। So what we are trying to understand over here is banks will accept your deposit and they will offer you withdrawal at demand. अब अगर आपको withdrawal करना है तो आप ATM के थ्रू withdrawal कर सकते हो। आसान है, ये तो सबको पता है। दूसरा है चेकबुक, चेक से विड्रॉ कर सकते हो आप। किससे? चेक से। और तीसरा है विड्रॉल स्लिप से आप विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? These are the 3 ways through which you can withdraw the money from your account. From your account. समझ में आया? The details of this we will be doing it in the next class.